Talking about data centers, 2020 में you invested in data centers, Yeah. right? Much before ये hype बना उसके पहले. So you were like, what did you see 2020 में data centers क्यों बड़े बनेंगे, which maybe other people didn't see it? So I'll be honest, I didn't think of AI at that time. But what I did think was that we are one of the largest smartphone mobile population in this country. And people like Raj Shamani are creating some fantastic content. And millions of people are consuming it. Where is that content going to be stored? How are those people going to get the content hot off the press immediately? Right? So that's all goes through the data centers, right? So the sheer volume of data that the country generates and the digitization initiatives that the government has already taken through Aadhaar, Jan Dhan Yojana, etc. It was very clear that the digital backbone of the country has to become very, very significant supporter. So it was a very core aspect of India. So that is the first part of it. Then when we looked at it, कितने लोग हैं इंडिया में? जब 4 साल पहले जब हमने लगाया था, there were only 4 data center developer operator in this country. Okay. 4 ही थे. उसमें 2 multinationals थे. एक सिफिका था, एक there was another company called Controless. तो हमने कहा यार ये ऐसा तो होने. फिर हमने देखा कि भाई ये इतना डेटा इंडिया का जो जनरेट हो रहा है जा किधर रहा है. इट इज बीइंग स्टोर्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सिंगापुर एंड अदर प्लेसेस एंड ऑल दैट. अब इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट कि भाई डेटा प्राइवेसी तो तब भी लोग बात करते थे. आधार के टाइम पे भी बवाल खड़ा हुआ था डेटा प्राइवेसी का. मैंने कहा अगर डेटा प्राइवेसी इतना बड़ा इश्यू हो सकता है अमेरिका में, हमारे यहाँ पर भी लोगों ने डेटा प्राइवेसी, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि हमारे सारे डेटा जो है हिंदुस्तान के बाहर स्टोर हो रहे हैं, फाइनेंशियल डेटा, पर्सनल डेटा. तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही विच विल मेक डेटा सिक्योरिटी एन इम्पॉर्टेंट इश्यू. पैसा लगाओ डेटा सेंटर के ऊपर, रेगुलेशंस अपने आप आ जाएंगे. और वही हुआ. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर निकाला, ऑल फाइनेंशियल डेटा शुड बी स्टोर्ड इन इंडिया, राइट. एंड नाउ people realize, for example, when some parts of, due to sanctions, you can cut off a country from the international transfer system in SWIFT, right? So everything is now becoming dependent on digital infrastructure that you have. When we invested, we had an inkling that this could become a sovereign security issue. But it wasn't in that form and shape in our head. The way in our बहुत ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये एक मुद्दा होगा, राइट. तो हमने उसी पर बेट लिया. दिस इज व्हाट आई मीन बाय सेइंग कि व्हाट डू यू वांट टू बेट ऑन. उस टाइम पे मैं गेमिंग कंपनी में भी डाल सकता था. बहुत सारे यंग इंडियंस हैं जो गेमिंग करेंगे. फर्क है. व्हाट इज यू अप्लाई योर इंस्टिंक्ट ऑफ हाउ यू अंडरस्टैंड इंडिया. And how much returns did you make in this? अभी we'll make more than 30% return on that. Nice. Right. So how much did you invest in data centers? So we invested in 2 tranches, almost 1,600 crores. And this is from the credit side? Yeah. It is convertible equity, actually. Acha. So venture debt sorts. Venture equity you can call it. But it was a very... But venture debt यही तो करता है. Venture debt यही करता है. So that was the thinking at that time. And now, of course, everybody wants to set up data centers in India. So it's a hot theme. And all the big boys are in the club now. Correct. But वो सब अभी सब announcement है. जितने भी announcement हुए हैं उनका पहला डेटा सेंटर आने में कम से कम 2-2.5 साल लग जाएंगे. बट एक अगर आ जाता है तो फिर बैक टू बैक बहुत जल्दी आते हैं. फर्स्ट वाले की दिक्कत है. It's not easy to build data centers. और किसी की कैपेबिलिटीज के भी बाहर होता है. And the way winds are changing, it's difficult to predict. Interesting. कौन सी ऐसी अभी, like the way you had this instinct or gut feeling, ऐसे अभी कौन सी opportunity which you feel can be a potential something जो लोग दूसरे neglect कर रहे हैं? I would say that look, I'm not a Nostradamus to predict. It's on your instinct and some stuff. I'd say my instinct is still India will do dramatic stuff in life sciences and healthcare. जैसे अभी आपने मुझे डेटा सेंटर के बारे में समझाया ना,
क्या देखा, क्या इंसाइट था, किसकी वजह से बनेगा, ऐसे समझाओ मुझे। मस्त स्टोरी टेलिंग आपकी बहुत अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा द वे यू एक्सप्लेन मी डेटा कि ये मुद्दा कभी ना कभी बनेगा और इसलिए होगा। सेम वाई लाइफ साइंसेज। तो लेट मी एक्सपैंड इन हेल्थ केयर। 2 चीज़ें हैं इसमें। पहला कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो है, सरकार ने आयुष्मान भारत वगैरह न्यू स्कीम बनाए हैं, इसमें इसके 2 इफ़ेक्ट हैं। पहला कि बिकॉज वो सरकार की तरफ से इंश्योरेंस मिलता है, एक टर्मिनोलॉजी इलेक्टिव सर्जरी की, घुटने में दर्द है, आदमी प्राइवेट सेक्टर डॉक्टर के पास जाता है, कहता है ये आपको ना 3 लाख रुपए लग जाएंगे एक घुटने का चेंज कराने का। तो वो घर जाता है, वो तो मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं। दिस वॉज द सिनेरियो 4 years ago। अब भारत सरकार कहती है कि मैं आपको इंश्योरेंस करा देता हूँ, आपको घुटने में कम से कम आपका हो जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? आयुष्मान भारत, सो दैट गाय हु वाज सॉर्ट ऑफ बेयरिंग द पेन, लिंपिंग अलोंग, वो तेल वेल मालिश वालिश करके अपना वो जा रहा है, वो अपना घुटने का ऑपरेशन करा रहा है, भारत सरकार पे कर रही है। तो वो जो नी इम्प्लांट है वो कौन सी कंपनी का है और कितने का था? हम बम्बई में यहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, नी इम्प्लांट कराते हैं, लाखों रुपए खर्चा करते हैं। ये इंटरनेशनल कंपनी X का है, इंटरनेशनल कंपनी Y का है, ठीक है। सेम प्रोडक्ट इज मेड इन इंडिया नाउ, द प्राइस इज डाउन बाय 55 to 60%, right? Why? One, the product actually should be costing only that much, right? Second is that the sheer volume brings down the cost. So you have to identify those things. Secondly, people have realized कि भाई ये सब चीज़ें जो हम फालतू में इंपोर्ट कर रहे थे, कि जरूरत नहीं है इतने। आप एक एग्जांपल लेता हूँ स्टेंट्स का, ठीक है। गुजरात में एक कंपनी है, वो कंपनी जो है डायमंड कटिंग के बिजनेस में थी। तो कंपनी का मालिक जो है उसको हार्ट अटैक हो गया था, और फिर इमरजेंसी में उसने समझा कि ये क्या है ये स्टेंट। एंड द की इज हाउ प्रिसिशन इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड टू कट द प्लास्टिक एक्चुअली इफेक्टिवली, इन सिंपल लैंग्वेज में। मैंने कहा ये तो हम बना सकते हैं। कोई बैकग्राउंड नहीं है साइंस का, कोई बैकग्राउंड नहीं। उन्होंने स्टेंट बनाया, ठीक है। अब जब स्टेंट बना के बेचना शुरू किया, जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनके भाव से 20% ऑफ द प्राइस में, इट्स नॉट द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट स्टेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। So these are the kind of things, you know, when the India market opens up and expands, there is a lot of things that will open up. That's one aspect of it. Then on the innovation side, I said earlier कि the collaboration between capital and academics, that has now become better and better. More such money. तो हमारे ही portfolio में we have 4 companies. One out of IIT Bombay, one out of Indian Institute of Science, 2 out of Indian Institute of Science, Bangalore, which are doing some pioneering work. एक simple math बताता हूँ कि the cost of developing a drug in India is about $20 to $24 million. Same thing in the US and other places will be more than $100 million, right? पहले ना हमारे पास सहूलियत थी, ना पेशेंस था, अब है। And people have started doing it. जो ऑन द सरफेस आज आपको नहीं दिखेगा, 4 साल बाद दिखेगा। देर आर, कैंसर में CAR-T सेल थेरेपी है। इन इंडिया यू कैन डू CAR-T सेल थेरेपी एट 20% ऑफ द कॉस्ट देन द US, अप्रूव्ड नाउ। एंड दिस विल चेंज द इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ केयर। कि नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव होगा। वी आर चेंजिंग इट। We don't have enough delivery capabilities today, not enough hospitals, not enough primary care centers. All this will happen. All of that requires capital, which is why I'm saying, right, if I look at the entire spectrum of healthcare, right from diagnostics, for example, today, when my own, relatives, brothers, sisters, they come here, they are shocked कि आप घर पे बैठो
और सुबह आके वो आपका ब्लड टेस्ट लेके जाएगा, खाना खाने के बाद दोबारा आके आपका ब्लड टेस्ट लेके जाएगा, और शाम को आपके मोबाइल में आपकी पूरी रिपोर्ट एट अ प्राइस पॉइंट दैट दे कांट इमेजिन. $10 के अंडर. They cannot imagine. You try doing that in America. Oh my God. You try meeting your doctor in America. So we will change the rules of the game in this. I'm reasonably convinced in terms of what will happen in the entire spectrum of healthcare.